Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurgaon. Here I am ready to presenting a lecture on pre-stressed concrete design. I already made a lecture on the introduction part. Now I am ready to take a lecture on losses of pre-stressed concrete. So you can refer my first lecture which I already made for the introduction part. Okay. So this is very important topic as I already told you. As examination point of view, generally always it will come in the examination 5 to 10 marks, sometimes 15 marks. So the most important questions are what is pre-stressed concrete and what are the method of doing pre-stressing, and sometimes pre-tension beam, post-tension beam, and the difference between both. These are some important questions, and you may also include these losses portion. This is also very important one. Okay, so I will just start with some short notes. Let me open. Okay, so today's topic is types of losses in pre-stress concrete. I already told you about the pre-stressed concrete. ऐसी concrete जिसमें जिसकी strength को हम पहले से increase करते हैं by two methods. First is pre-tensioning method and second is post-tensioning method. Pre-tensioning method में हम जो tendons होते थे, जिन tendons का हम use कर रहे हैं, उनकी strengthen करते थे with the help of some jacks. After that, the load will distribute from steel to concrete, and that section will harden and gained its strength, full strength. Then that artificial blocks we will use as it is in the construction site, right? So it can be built in the factories before starting the construction. And second one is post tensioned system. Post, in this method we can cast the beams or blocks, slabs, any structure. Sleepers you may also include, you know, the sleepers where आपने रेलवे ट्रैक्स पे स्लीपर्स देखे होंगे, वो भी प्रीकास्ट मेंबर्स हो सकते हैं. उनको आप कास्टिंग या तो फैक्ट्रीज में कर सकते हैं या फिर कास्ट इन सीटू करते हैं. कास्ट इन सीटू का मतलब होता है ऑन द साइट. यू मे कंस्ट्रक्ट ऑन at the construction site, right? So here are some figures. You may create your own notes by seeing these theory notes. That will be better for you. So the losses are, first is elastic shortening, second is shrinkage of concrete, third is creep of concrete, fourth is frictional loss, right? And fifth is relaxation of steel, and sixth is anchorage take up. So you generally we are using these 5 losses, and we will calculate these 4 losses with the help of some formulas. इसके लिए आपको 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट्स जो बीटेक के हैं उनके लिए वैसे तो ये टॉपिक सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो लॉसेस की थ्योरी हमेशा आती है, 100% हमेशा आती है. बहुत ही रेयर है कि ये ना आए. तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनकी शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, फॉर्मूला और एक मैं न्यूमेरिकल शो करूंगी, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं. नाउ दिस इज अ टेबल आई मेड about pre-tensioning and post-tensioning. First is your elastic deformation of concrete. तो इस टेबल को मैंने ऐसे बनाया है कि आप प्री टेंशनिंग यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट ये, राइट? दीज आर टू सिस्टम, दीज आर टू मेथड्स ऑफ डूइंग प्री स्ट्रेसिंग. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि लॉस हो रहा है, अगर इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉस हो रहा है तो प्री टेंशनिंग में होता है. यहाँ पे यस लिखा हुआ, दैट मींस इट हैपेंस इन
pre-tensioning system, right? And it is not happen in post-tensioning system. So at this point you can memorize. Second is relaxation of stress in steel. रिलैक्सेशन वर्ड का मतलब यही होता है कि आपने कोई स्ट्रेस लगाया, यहाँ पे आप टेंडन्स पे स्ट्रेस लगाते थे, टेंडन्स मतलब जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे जो वायर्स हैं उन पे स्ट्रेस लगाते, उनके थ्रू स्ट्रेस कंक्रीट में ट्रांसफर होता है और वो पूरी बीम हार्ड हो जाती है, हार्डर उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग में जितना स्ट्रेस लगाया है उसको धीरे धीरे जब वो रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होने की ड्यूरेशन में जो लॉसेस होते हैं दैट comes under relaxation of stress in steel. So it is happening in both cases, like in pre-tensioning system and post-tensioning system. Third is your shrinkage of concrete. It is also happening in both the system. Shrinkage आपको ये पता है concrete हमारा किस material का बना होता है? Cement, sand, aggregate and water. इट इज अ मटेरियल, और मटेरियल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो कंक्रीट में श्रिंक होने की भी संभावना होती है, उसमें क्रीपिंग होने की भी संभावना होती है और लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आपने देखा होगा आप कंक्रीट की कोई दो ब्लॉक्स बनाते हैं उनके बीच में भी गैप छोड़ते हैं, व्हाई यू आर लीविंग दैट गैप, कि आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन और सम अदर एनवायरमेंटल चेंजेस द गैप विल बी फिल्ड, मे बी द कंक्रीट विल एक्सपेंड और it may shrink, so both the condition will happen in future. So that is why we will left some gap over there if we are doing if we are using concrete material. So similarly here the losses are like shrinkage of concrete and creep of, then the fourth one is creep of concrete. What is creeping? क्रीपिंग वर्ड का मतलब आप डिफॉर्मेशन से ले सकते हैं कि कंक्रीट की कोई सपोज कोई बीम है और टेम्परेचर वेरी करने से उसमें हल्का सा अंडुलेशन या हल्की सी फोल्डिंग या उसका स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन अगर हमें देखने को मिलता है तो दैट कम्स अंडर क्रीपिंग, राइट। इट हैपेंस इन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग बोथ। एंड द फिफ्थ वन इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस को हम पोस्ट में इंक्लूड करते हैं इन स्पाइट ऑफ प्री, क्योंकि पोस्ट में क्या होता है कि आप टेंडन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, पहले बीम कास्ट करते हैं उसके बाद आप टेंडन्स को उसमें इंड्यूस करते हैं। तो टेंडन्स को जब आप इंड्यूस करते हैं उसके बाद जब आप कर्टेलमेंट करते हैं तो उसमें कुछ फ्रिक्शनल लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज व्हाई वी विल आल्सो इंक्लूड, but these are very minor, so we can sometimes ignore this friction loss, and we already considered 4 losses up to creep. Okay, so anchorage grip losses भी हम पोस्ट में ही कंसीडर करते हैं इन स्पाइट ऑफ प्री। क्यों? क्योंकि आप पोस्ट में जो डक्ट जनरेट करते हैं, राइट, इसके बाद आपने उसमें टेंडन्स को इंड्यूस किया, टेंडन्स इंड्यूस करने के बाद जो डक्ट को फिल किया जाता है वो ग्राउटिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। उस ग्राउटिंग के ड्यूरेशन में भी हम कुछ लॉसेस को मानते हैं कि जो जितना स्ट्रेस ऑलरेडी बीम पे लग रहा था वो अब कम लग रहा है और वहां पे कुछ लॉसेस इंक्लूड हम कर सकते हैं, तो दैट कम्स अंडर पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम, राइट। सो दिस इज अबाउट losses. Now first is loss due to elastic shortening. Okay, so in this type of loss in pre-tensioned beam, when the pre-stress is transferred from steel to concrete, the concrete member gets shortened along steel. This result in loss of pre-stress and it may happens around 3 to 6%. आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट या मेंशन नहीं है, बट इट इज 3 to 6% लॉस आपका इस इलास्टिक शॉर्टनिंग की वजह से होता है, एंड दीज आर द फॉर्मूला। ओके, सो फाइनली we have to calculate this with the help of this formula. MFC is equals to losses due to elastic
shortening. Okay. Second is your losses due to shrinkage of concrete. Shrinkage of concrete. श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि कंक्रीट श्रिंक बिकॉज ऑफ ड्राइंग और केमिकल चेंजेस. कंक्रीट जब श्रिंक करता है तो आप जब क्यूरिंग या किसी उसको ड्राई कर रहे होते हो उस समय पे वो उसमें श्रिंकेज होता है. तो कभी कभी भी श्रिंकेज को इग्नोर करते हैं, कभी कभी इसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो देन वी हैव टू कंसीडर द श्रिंकेज लॉस आल्सो. The shrinkage in concretes depend upon the quantity of water, aggregate and atmospheric conditions and time. Right? श्रिंकेज जो होता है वो आपका कंक्रीट किस मटेरियल का बना रहे हैं आप उस चीज पे डिपेंड करता है. कंक्रीट आप सीमेंट किस ग्रेड का यूज कर रहे हैं, उसमें जो एग्रीगेट जो गिट्टी आप यूज कर रहे हैं वो किस ग्रेड की कर रहे हैं, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्या है, सीमेंट की क्या स्ट्रेंथ है, एंड वाटर भी आप कैसा यूज कर रहे हैं. वाटर भी आप अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, पीएच वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए. ये सारे पॉइंट्स के लिए मैटर करते हैं. तो श्रिंकेज वैल्यू आप ऐसे निकालते हैं. तो लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. Later on I will show some other formula of the same terms. These are much more better and easy to learn. So just wait, I will show you the other slides also. So the third loss is losses due to creep of concrete. आप यहाँ से थ्योरी पोर्शन अच्छे समझ लीजिए. न्यूमेरिकल में आपको क्या फॉर्मूले यूज करने हैं वो मैं एक स्लाइड के थ्रू उसमें सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं, वो मैं दिखाऊंगी. जस्ट वेट, जस्ट राइट डाउन द थ्योरी पोर्शन ओनली. So this is loss due to creep of concrete. So what is creep? आप creep को एक डिफॉर्मेशन से समझिए, ठीक है. आप फॉर एग्जाम्पल व्हील जो होता है, जो रेल की पटरी का व्हील होता है, उसमें कंटिन्यूअस लोड लगने की वजह से भी उसमें क्रीपिंग हो जाती है, डिफॉर्मेशन जनरेट होता है. ठीक है, बीम पे कोई लोड लगता है तो उसमें क्या होता है, हल्का सा डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक है. और उस लोड से ज्यादा लोड लगेगा तो मे बी वहां पे कोई क्रैक या फॉल्ट डेवलप हो जाए. तो क्रीपिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फेलियर. यू कैन अगर क्रीपिंग को प्रॉपरली एनालाइज किया जाए तो आप फेलियर से बच सकते हैं. तो क्रीप ऑफ कंक्रीट मतलब उसकी जिस शेप का हम ब्लॉक बना रहे हैं उसमें हल्का सा डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज द क्रीपिंग. एंड क्रीपिंग होने की वजह से जो लॉस हो रहा है मटेरियल का, जो लॉस हो रहा है स्ट्रेस का, वो आपका लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट में इंक्लूड होता है. राइट? Okay, so just wait, I am just showing other slides. Okay, these are also some losses due to elastic shortening, that first one, right? Here I mentioned always you have to take loss up to 6% only. मतलब हमने ये मैक्सिमम केसेस में देखा है कि प्री टेंशन बीम्स में जो लॉस होता है वो 6% से ज्यादा नहीं होता है. ठीक है, तो जो भी स्ट्रेस उसमें प्री स्ट्रेस जो लग रहा था उसमें जो लॉस है उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ में लॉस आ रहा है या जो भी मटेरियल लॉस हो रहा है वो अप टू क्या है 6%. ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है this one, this you have to use directly in the numericals. Fs is equals to mfc, right? So what is fs and fc? Just write down this. Fs and fc is the loss of stress at the level of center of cables in steel and concrete respectively. And what is m? What is m? M is a very important term known as modular ratio. Modular ratio की ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ES by EC. ES is the modulus of elasticity of steel and EC is the modulus of elasticity of concrete, right? So you should learn these formulas. इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला है,
ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन क्या है, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। अगर आप बोलेंगे तो मुझे आप कमेंट कर दीजिए तो मैं उस पर जा सकती हूँ। तो F is equals to MFC. You should learn this formula, and where what is M here? M is modular ratio. Now second is loss due to creep of concrete. Creeping को हमें, आप इसकी डेफिनेशन यहां से पढ़ लीजिए. Creep is the strain caused in concrete due to sustained stress over a period of time, and the sustained stress is the pre-stress which causes creeping shortening, right? And this may range up to 10%. And here you may see the loss of pre-stress due to creep formula. This one, M phi Fc. What is phi here? Phi is the creep coefficient. What is Fc here? Fc is the sustained stress. सस्टेन्ड स्ट्रेस है आपका Fc, जो भी उस पर्टिकुलर बीम पे लग रहा है, ठीक है. एंड EC यंग मॉडुलस, ES इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, और EC यंग मॉडुलस फॉर कंक्रीट. तो ये आपको याद रखना है M phi Fc, ठीक है. आप इसको नोट कर लीजिए. Loss due to creep is M phi Fc. M phi Fc, loss due to creep. Now third is loss due to shrinkage. Earlier I told you about the shrinkage. Shrinkage is happening due to the material, कि हम किस टाइप का material use कर रहे हैं. So loss due to shrinkage, we have to use the formula this, loss of pre-stress ES into epsilon SH, ठीक है. epsilon SH क्या है? shrinkage strain. और ES क्या है? modulus of elasticity of steel. Yes, modulus of elasticity of steel and shrinkage strain. Okay. This is other लॉस इन श्रिंकेज में. ES क्या था आपका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. ESH क्या था? श्रिंकेज स्ट्रेन. P is the age of concrete in days. एप्सिलॉन SH की जो वैल्यू है प्री टेंशनिंग के लिए हम 0.0003 लेते हैं. इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, राइट. एंड पोस्ट टेंशनिंग के लिए एप्सिलॉन SH की वैल्यू हम लेते हैं 0.0002 by log 10 T plus 2. T is the age of concrete in days, ठीक है. तो ये तो फॉर्मूले हैं, इनको एज इट इज आपको याद रखना है. आप इतने पोर्शन को नोट कर लीजिए श्रिंकेज लॉस के अंदर. For pre-tension member, this loss is about 5%, and for post-tension it is about 3 to 4%. ये श्रिंकेज की बात की गई है कि प्री-टेंशन मेंबर्स के लिए 5% होता है और पोस्ट के लिए 3 to 4% होता है. ओके. लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन, इसके बाद में एक एग्जांपल बताऊंगी. दो लॉसेस को हम बाद में लेंगे क्योंकि दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट वंस, एंड इन चार को ही हम इंक्लूड करते हैं. लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस. सो दिस इज 4 टाइप. लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि जब हमने स्टील पे जो स्ट्रेस दिया है, जब उसको हम रिमूव करते हैं तो उसके थ्रू कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप्ड होता है, तो उस रिलैक्सेशन प्रोसेस के थ्रू भी कुछ लॉसेस होते हैं जो बहुत कम होते हैं. दिस इज अप टू 2 to 8% ऑफ प्री स्ट्रेस.
So which we can also include these type of stresses. ठीक है? Now we will do an example. So this is a question which is very, very important and generally asked by the examiner in the examination. Okay, so I will take this later on because it will take a long time. So if you have guys any query or question, then you can send me the message. Thank you very much.